Hello dear students, good morning. Till previous lecture we had discussed about Coulomb's law and electric field, and after that we had discussed continuous charge distribution, and we were discussing about electric flux. So I do like to continue some more examples which are based on electric flux and all that. Okay, so the next example, if we had to calculate electric flux due to a point charge Q, which is placed outside. Suppose this is the object of area A, and see the charge Q is placed like this. So we know electric field lines originates from a charge like this. Suppose these are the electric field lines which are perpendicular. See, here the area and electric field lines are perpendicular to each other. Here I am going to draw this particular object in 2D. That's why it looks like this. Otherwise the object is placed like this. Okay. See, we have to calculate net flux, phi net. So we have to calculate net flux crossing this particular surface of the body. And we know a net flux is defined as the count of number of field lines crossing an area. अब आप बात करोगे कि सर जो फ्लक्स जो है वो क्रॉस कर रहा है कितने लाइंस को कर रहा है या किसको कर रहा है, तो बेटा आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये आउटसाइड है, किससे, सीट के आउटसाइड है. इट मींस इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा. वो कैसे होगा उसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं. सपोज करके मैं एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करता हूं कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है, वो आपका एक क्यूब के आउटसाइड रखा है. सिमिलर लाइक दिस. सी इफ अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज प्लेस्ड suppose here, and the electric field lines are like this. And whereas the side of cube is A, and the electric field is E naught. We have to calculate net flux. So phi net calculate करना है. We know phi is EA cos of theta. There are total 6 surfaces. Of a cube. The very first surface I am going to nominate 1, 2, 3. The third one is upper one, and the fourth one is lower one, and fifth and sixth. See, if I am going to consider a cube in 3D, so we can suppose that this particular room is like a cube. So there are 6 surfaces. First one, second one bottom, third one top, and fourth and fifth and sixth. So there are 6 surfaces. Like this particular duster. If I am going to consider a duster as a cube, so there are 6 surfaces and the electric field lines like this. So there are only 2 surfaces by which the electric field lines are passing. Okay. So the electric flux due to phi due to the surface 1, 2, 4 and 3, 0. Why 0? Because theta is 90 degree and we know cos 90 is 0. That's why phi 0. इट मीन्स आपके जो सरफेस है बेटा, सपोज करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के लिए, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसका इस सरफेस का एरिया बेटा या परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, तो एंगल कितना है 90. सिमिलर टू दैट वन पर्टिकुलर सरफेस व्हिच इज अपोजिट टू दिस वन, electric field lines like this and area like this, so it will be also be perpendicular to each other, and the same for the bottom surface and top surface. So the remaining 2 surfaces surface number 5 and 6, by that we will get flux. Okay, so phi net is equals to phi 5 plus phi 6. Here the surface
number 5 by which the flux is linked, and the sixth one also same. Okay, we have to calculate it. Now we know the direction of area vector. We know the direction of area vector is always radially outward for closed surface objects. Now if I am going to consider the direction of area vector is outside, so here for this particular surface number 5, for this particular surface I am going to consider the direction of area vector which is radially outside, and the direction of E vector is inside. The direction of E vector is inside. So for this particular, the theta is 180 degree. Theta is 180 degree because both are anti-parallel. Both are anti-parallel to each other. Area vector is outside, whereas the direction of electric field is inside. Okay. For the surface number 6, if we had considered the direction of area vector outside, so here we have to consider the direction of area vector outside, and the direction of E naught is in same direction. So here the theta is 0 degree. Theta is 0 degree. Now we have to write down the flux which is linked through surface number 5th and 6th. So the 5 जो होगा बेटा आपका वो होगा E cos of theta. E आपका E naught है बेटा. एरिया जो होगा साइड स्क्वायर का साइड A है तो एरिया विल बी A square E A square cos 180. E A square cos 180 plus E naught flux linked with surface number 6 which is E naught A square cos 0. E naught A square cos 0. अच्छा E naught A square को अगर बेटा मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो E naught A square कॉमन आता है तो आपको बचेगा cos 180 plus cos 0. Cos 180 plus cos 0. अच्छा we know cos 180 it means -1. cos 180 it means -1, तो आपका हो जाएगा बेटा E naught A square -1 plus 1. cos 0 is 1. cos 0 जो होता है बेटा 1 होता है. cos 180 जो -1 होता है ना, तो -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनाइट कितना आया? 0 आया. फाइनाइट कितना आया? 0. अब बेटा अगर आपसे मान लो कि MCQ टाइप से क्वेश्चन किया जाता है कि you have to calculate the net flux, whereas E naught it means electric field is constant, then we can say the electric flux linked by this particular cube is 0. Why 0? Because see, अगर ये आपका रूम है तो रूम के बाहर से जितने लाइन काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज नोन एज फ्लक्स. सो जितने लाइन एंटर कर रहे हैं बेटा उतने सेम लाइन एग्जिट भी तो कर रहे हैं, तो इससे लिंक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि इस सरफेस से जितने एंटर कर रहे हैं सेम लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के, उतने सेम लाइन क्या कर गए? एग्जिट कर गए. तो इससे नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0. तो इसी बेसिस कंसेप्ट के बेसिस पे मैं यहां बोल सकता हूं अगर कोई चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड प्लेस है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिंक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. क्योंकि जितना फील्ड लाइंस आपके एंटर कर रही है उतना एग्जिट भी कर रही है ना. तो दैट्स व्हाई वी कैन से द नेट फ्लक्स ऑफ अ बॉडी फ्रॉम आउटसाइड चार्जेस इज 0. Let's consider another example which is the proof of Gauss law also. See, if I'm going to consider a point charge Q, which is enclosed by a spherical sail, of radius r. Now we have to calculate the net flux linked by this particular sphere. Sphere. We know phi is Ea cos of theta. Or we can say phi is E dot A. It means dot product of electric field and area vector. For closed surfaces, if I am going to consider a small cross section area A, so this is the direction of dA vector. And we know electric field lines originates from positive charge. So for this particular small area dA vector, the electric field lines also same. So E. Okay, now we know at a distance r we have to calculate, if we are capable to calculate the small flux linked by this smaller dA area, then we will integrate and we will calculate net flux. Okay, see, if I am going to write down the linked flux by this particular small area which is d phi, suppose, which is d phi.
ओके, सो डी, इस छोटे से डी एरिया की वजह से सपोज करके जो छोटा सा फ्लक्स आएगा बेटा वो d5 होगा, तो d5 में बेटा लिखूंगा E डॉट डी ए। अगर मान लो कि मैं ये छोटे छोटे जो डी एरिया है वो सबको मैं इंटीग्रेट कर दूं, डी एरिया को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा 5 बन जाएगा। तो यहां से अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 क्या हो जाएगा बेटा E डॉट डी ए, 5 जो हो जाएगा E डॉट डी ए, और ये हो जाएगा बेटा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। बेटा ये क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने इंटीग्रेशन के साइन पे जो नॉट लिखा है ना तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आपके सरफेस इंटीग्रल को, क्योंकि हमें मुझे एक सरफेस एरिया का इंटीग्रल करना है। अच्छा बात करता हूं बेटा, आप ये पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस सबके लिए सरफेस के लिए सेम होगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल एज इट इज। अच्छा डीए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, डीए की बात करते हैं। अच्छा तो सर डीए तो मैं एज इट इज रख लूंगा। सर के कांस्टेंट है इस सरफेस के लिए, क्यू कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपका स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस जो है वो फिक्स है। सो वी विल KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन DA वेक्टर। अच्छा DA क्या है बेटा, एरिया है, और वी नो अगर मैं ये सबको छोटे छोटे सेगमेंट्स को मैं ऐड करूंगा तो नेट सरफेस एरिया मिलेगा मुझे स्फीयर का, एंड वी नो दैट नेट सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर इज गिवन एज 4 pi r square, is given as 4 pi r square. So phi equals to KQ upon r square and the surface area is 4 pi r square, 4 pi r square, 4 pi r square। अच्छा बेटा सोच के देखो, r square से r square कैंसिल आउट हो गया, r square से r square कैंसिल आउट गया। we will get phi equals to KQ, we will get phi equals to KQ, K का वैल्यू बेटा 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught, Q as it is and 4 pi। ओके 4 pi cancel out will 4 pi, तो we will get phi equals to Q upon epsilon naught, Q upon epsilon naught। अच्छा बेटा आप इस रिजल्ट को देख के क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो स्फीयर था कि क्यूब था कि क्यूबॉइड था कि कुछ और था? नहीं, वी कांट प्रेडिक्ट दैट वन, द नेचर और साइज ऑफ that particular surface by which the total charge Q is enclosed। okay, so मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, आपके ऑब्जेक्ट के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। सी अगर मैं रिजल्ट देख के ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये मेरा स्फीयर था कि क्यूब था या क्यूबॉइड था, और इससे भी कोई मतलब नहीं है कि बेटा इसका रेडियस r था कि कुछ और था। क्यों? अगर मैं बात करता हूं सपोज एक जनरल एग्जांपल की, सपोज इन अ पर्टिकुलर क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं तो एट द टाइम ऑफ लीविंग अगर मैं गेट पे किसी पियून को बोलता हूं कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उतना ही काउंट होगा जितना क्लास में था, है ना। क्लासरूम छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उससे पड़ेगा कि क्लास में कितना स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट था। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा क्यू पे, और क्यू क्या है बेटा, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। क्यू क्या है बेटा यहाँ पे, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, enclosed charge, and epsilon naught is permittivity of free space. The value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to power minus 12 that we had discussed earlier। okay, so this is the proof of Gauss law also, this is the proof of Gauss law। तो हम Gauss law के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। The next topic is Gauss law। Gauss law सिंपली बेटा गॉस लॉ ये बोलता है कि मान लो कि आपका कोई भी इर्रेगुलर साइज का, शेप का या कोई ऑब्जेक्ट है, और वो मान लो कि उसने क्यू इन चार्ज मैंने उसके अंदर पुट किया है, इनसाइड क्यू इनपुट किया है, तो गॉस लॉ ये बोलता है बेटा, लॉ है, लॉ का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, इट मींस इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है वो यही है, इसका प्रूफ दिया मैंने आपसे। ये बोलता है कि अगर क्यू इन रखा है तो मेरा नेट फ्लक्स जो होगा फाई नेट वो इस सरफेस से क्लोज करेगा, वो होगा बेटा सरफेस इंटीग्रल E डॉट डीए वेक्टर, E डॉट डीए वेक्टर which is always equals to Q in by epsilon naught, Q in by epsilon naught, Q in by epsilon naught। ये आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट है मैथमेटिकल।
Gauss law ये बोलता है according to Gauss law if we are going to enclose a charge q by a closed Gaussian surface then the net flux linked by that particular surface is always equals to q in by epsilon naught, q in by epsilon naught। अच्छा बात करते हैं सर Gauss law की बात करते हैं तो बेटा यहां से E जो है वो क्या है, तो E जो है बेटा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। E जो है बेटा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, नेट E is here net electric field due to all charges whether the charge is inside or outside the Gaussian surface, whether the charge is inside or outside the Gaussian surface, whereas dA it means the area, dA को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या है बेटा, area of that particular Gaussian surface, area of that particular Gaussian surface, whereas Q total charge enclosed by that particular Gaussian surface, whereas Q in जो है बेटा total charge है जो Gaussian surface क्या करता है उसको enclose करता है ना। अब हम थोड़े से इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। सोच सपोज कर इसी पे बेस्ड बेसिक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज कर कि मैंने एक चार्ज को मैंने क्या किया, सेमी सर्कल के अंदर रखा है ऐसा सिमिलर। सपोज कर कि यहां मैंने एक चार्ज रखा Q, what will be the flux linked with that particular surface, you have to calculate flux। so अब बेटा आपको क्या करना है, इस चार्ज को सिमेट्रिकली क्या करना है, एनक्लोज करना है। अगर मुझे सिमेट्रिकली एनक्लोज करना है तो मुझे एक और सेम साइज का एक और सरफेस ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर ये दो सरफेस मिलके कितना चार्ज देंगे, तो आप बोलोगे कि सर ये 5 होगा, ये 5 डैश है तो ये भी इससे भी 5 डैश होगा। अच्छा मैं बोलूंगा कि 5 जो क्या होगा वो हो जाएगा बेटा 2 5 डैश, 5 जो होगा क्या होगा 2 5 डैश, एंड वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 2 5 dash is equals to q by epsilon naught, q by epsilon naught, but we have to calculate the flux with that particular body also now. This one is given as half of the particular spherical sail. Okay, so 5 dash from here we will get 5 dash equals to q by 2 epsilon naught, q by 2 epsilon naught. There are so many more examples whereas the Q is placed, so we have to suppose the Gaussian surface symmetrically, we have to suppose the Gaussian surface symmetrically, so we will calculate Q. Suppose one more example, a charge Q which is placed inside a cube, a charge Q which is placed inside a cube, the side of cube is A, the side of cube is A. Now we have to calculate the flux linked with each surface of cube. Now we have to calculate the flux linked with each surface of cube. Suppose करके बेटा ये जो चार्ज है Q मैंने सेंटर पे रखा क्यूब के, क्यूब ठीक है। अच्छा आपको कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स लिंक्ड विद ईच सरफेस, flux linked with each surface, आप बोलोगे कि सर देयर आर टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आर ओवर देयर 6, तो 6 सरफेस से बेटा आपका फ्लक्स आएगा वो आएगा Q by epsilon naught, और अगर सिमेट्रिक कंडीशन पे रखा तो सिंगल सरफेस से कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर Q by 6 epsilon naught, सिंपल Q by 6 epsilon naught। बेटा सिंपल सी बात है, अगर एक सरफेस टोटल सरफेस कितने नंबर ऑफ सरफेसेस आर 6 एंड वी नो क्यूब है तो क्यूब का ईच एंड एवरी सरफेस का साइज सेम होगा a स्क्वायर, और सेंटर पे मैंने अगर चार्ज रखा है तो सेंटर पे रखा है तो हर एक सरफेस से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, एंड वी नो द नेट फ्लक्स लिंक्ड बाय अ क्यूब ड्यू टू अ चार्ज q which is inside the symmetric position at center of cube which is q by epsilon naught, so 6 surfaces links total flux q by epsilon naught, so one flux linked by single surface will be q by 6 epsilon naught. Now we are going to start the application of Gauss law. Application of Gauss law. The very first application is calculation of electric field. Calculate electric field due to symmetrically charged infinite wire, charged infinite, इट मीन्स आपका जो वायर जो है बेटा वो सिमेट्रिकली चार्ज्ड है
और उसकी लेंथ क्या है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ है। लेंथ क्या है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ है। सपोज करके मैंने जो चार्ज कंसीडर किया वायर वो ऐसा है, इनफाइनाइट लेंथ है। द चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली है, इट मींस आपका जो लेंथ ऑब्जेक्ट है, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द नेट चार्ज और चार्ज डेंसिटी दैट वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। सो द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज गिवन एज लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। क्योंकि हमारा जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कैसा है बेटा, 1D ऑब्जेक्ट है, और 1D ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर। Now we have to calculate electric field. It means मेरे को गॉस लॉ यूज करना है, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा। सबसे पहली बात तो कि फ्लक्स जो फाई होता है बेटा वो क्या होता है, E डॉट DA which is always equals to Q by epsilon naught, और मैं Q को Q in लिखूंगा जनरली, क्योंकि the charge which is inside the Gaussian surface. Okay, so this is the mathematical statement of Gauss law, and we have to calculate electric field by using this particular law. We have to calculate electric field by using this particular law. So first of all we have to consider a Gaussian surface. First of all we have to consider a Gaussian surface. For length object we will consider a cylinder. We will consider a cylinder like this of length L. So first of all let us consider a cylinder of length L as a Gaussian surface, and the wire is at the axis of, wire will act as the axis of this particular cylinder. Okay, let the radius of cylinder, is R, and the length is L. Okay, now we have to calculate electric flux. Phi equals to E dot DA equals to Q in by epsilon naught by using this particular law. So there are two type of surfaces. There are two flat surfaces. And one surface is curved surface. You know, cylinder, suppose करके ये cylinder है, तो cylinder के बेटा दो surface है, एक जो आपका surface है वो कैसा है, curved surface है, और आपके पास दो surface कैसे होंगे, flat surface होंगे, है ना। तो मैं बात करता हूँ अगर curved surface के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अपना जो चार्ज कैसा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा। अगर अपने चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, इनसाइड होता है ना। अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, आउटसाइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। अच्छा, बात करता हूं मैं एरिया वेक्टर के लिए, तो एरिया वेक्टर के लिए कि सर ये वाला जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो सरफेस ऐसा है, तो उसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, आउटसाइड ऊपर होगा। तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस सरफेस के लिए वो ऊपर होगी, है ना। और इस वाले सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। इट मींस द नेट फ्लक्स, और इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, पैरेलल होगी, है ना, इनके लिए परपेंडिकुलर। तो मैं अगर फाई नेट की बात करता हूं तो बेटा मैं फाई नेट लिखूंगा कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 2 प्लस फाई 3। देयर आर टोटल 3 surfaces. Out of these 2 surfaces are flat, whereas the third one surface is curved surface. Okay, so these are the flat surfaces. Flat, or the third one is curved. We can say phi 1 and phi 2, we can say we know phi 1 equals to phi 2 equals to 0. Why 0? Because the angle between E and A, because the angle E, the direction of electric field is like this, and the direction of area vector this and this. So the angle because the theta here, theta is 90 and cos 90 is 0. We can say the net flux linked through surface 1 or 2. The surface, this one surface, this 1 and this is 2 and this is third one surface. Okay, so the flat surface, there are the flux linked with flat surfaces, first and second is 0. Why 0? Because we know here theta angle between area vector and electric field vector is 90 degree, and we know cos 90 is 0, so we can say phi 1 and phi 2 0. Now the phi net is phi 3. Phi net is phi 3, which is equals to surface integral of E dot dA. Okay, so phi equals to E dot dA. It means we have to calculate the electric field due to this particular wire over this surface, which is we have to calculate. So E जो होगा बेटा ये सिमेट्रिक कंडीशन है, सरफेस पे एक सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के एक्सिस से जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका डिस्टेंस सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो E को मैंने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, so E डॉट dA, इट मींस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल dA जो आपका होगा बेटा वो क्या होगा आपका Q in by epsilon naught,
q in by epsilon naught according to Gauss law. According to Gauss law, see, according to Gauss law, surface integral E dot ds should be equals to q in by epsilon naught. That's why we can write down like this over here. Now we have to calculate E dot dA. It means आपको जो है वो कर्व्ड सरफेस का एरिया बताना है बेटा. आपको क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस का एरिया. And we know the curved surface area of a cylinder, curved surface area of a cylinder is 2 pi RL. See बेटा, आपका ये रिंग है. अच्छा, रिंग का पेरीमीटर कितना? तो आप बोलोगे अगर r रेडियस है तो रिंग का पेरीमीटर होता है बेटा 2 pi r, है ना. अगर मैं इसी को थोड़ा सा, इसी रिंग को मैं ऐसे ऊपर बढ़ा दूं, इसी रिंग को मैंने ऊपर बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया बेटा? सिलेंडर बन गया. अगर इस सिलेंडर को मैं कट करता हूं तो ओपन करता हूं तो मेरे पास एक सीट बनेगी जिसकी लेंथ होगी 2 pi r और उसकी जो ये ब्रेथ होगी वो l होगी. तो इसका जो एरिया हो जाएगा बेटा, वो एरिया कितना हो जाएगा? 2 pi RL, 2 pi RL. ठीक है ना. तो मैं बात करता हूं तो E डॉट डी की बात करता हूं तो E इंटू 2 pi RL, E इंटू 2 pi RL, E into 2 pi RL, whereas R is the radius of Gaussian surface, radius of Gaussian surface which is cylindrical over here. So E into 2 pi RL equals to Q in by epsilon naught, Q in by epsilon naught. अब now we have to calculate Q in. Q in जो है बेटा, अगर आपका ये लैम्बडा है तो आपको कल मैंने बताया लैम्बडा जो होता है वो Q by L होता है. लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है? Q by L. मुझे यहाँ Q चाहिए तो Q क्या बोलूंगा मैं? लैम्बडा इंटू L. Q क्या हो जाएगा बेटा आपका? लैम्बडा इंटू L. Q here is the net charge enclosed by this Gaussian surface. So charge density होती है Q by L. अगर मैंने L लेंथ लिया है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? लैम्बडा इंटू L. So Q in हो जाएगा लैम्बडा L. Q in हो गया आपका लैम्बडा इंटू L by epsilon naught. देखो बेटा, L से L कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो, तो E आपका जो आएगा बेटा वो आ जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 pi r epsilon naught. लैम्बडा अपॉन 2 pi r epsilon naught. अगर मैं बात करता हूं कि सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? फिर उसको r कैप से मल्टीप्लाई करूंगा. अब देखो ये आपका आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर. अब बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, क्योंकि देखो बेटा अगर लैम्बडा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो r की डायरेक्शन, और r क्या है बेटा? एक्सिस से, r जो है बेटा एक्सिस से इसका रेडियस वेक्टर है और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन आउटसाइड है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो देखो ये वहीं से ये यूनिट वेक्टर है तो E की डायरेक्शन वही होगी जो R की डायरेक्शन है. अगर कोई बोले कि सर हमारा अगर चार्ज जो होता है इसका चार्ज डेंसिटी वो नेगेटिव होता है तो यहाँ क्या आता है बेटा? माइनस लैम्बडा आता है. तो माइनस लैम्बडा की वजह से R के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी होती? E की डायरेक्शन होती है ना. तो ये हो गया K लैम्बडा बाय R. अगर आप किसी और बुक में देखोगे तो थोड़ा इसको शॉर्ट किया गया है, उसको ऐसा कन्वर्ट किया गया कि अगर सपोज करके मैंने इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मैं लिखूंगा E वेक्टर इक्वल्स टू 2 लैम्बडा और डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 बना दूंगा तो 4 pi r और epsilon naught, 4 pi r और epsilon naught. अच्छा वी नो 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon ये 1 सपोज करके 1 upon 4 pi epsilon naught क्या बन जाएगा बेटा? K बन जाएगा r कैपिटल से. तो यहाँ से आपका जो E वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा बेटा आपका यहाँ से 2k लैम्बडा अपॉन r. ये क्या बन जाएगा बेटा? 2k लैम्बडा अपॉन r और r कैप. तो आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर एट डिस्टेंस r इज 2k लैम्बडा अपॉन r, इज 2k लैम्बडा अपॉन r. इट मींस अगर मैं यहां से आपका E वर्सेस r का ग्राफ बात करता हूं तो E वर्सेस r के ग्राफ की बात करता हूं तो बेटा आपको जो ग्राफ मिलेगा E वर्सेस r वो ऐसा मिलेगा. ये r है, ये आपका E है, तो आपका मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा. कैसा मिलेगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इट मींस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के. So this is the very first application of Gauss law. You have to calculate using Gauss law. अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपने जो बोला Gaussian surface सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए? आपने बोला कि सर Gaussian surface सिमेट्रिक क्यों होना चाहिए? By using Gauss law we can calculate electric field. By using Gauss law we can calculate electric field. For that particular calculation of electric field, our Gaussian surface should be highly symmetric. अगर आपका जो Gaussian surface है वो highly symmetric नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस dA वेक्टर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E है सपोज कर, और अगर ये सिमेट्रिक ना होता इस साइड में अगर यहाँ तक जाता तो आप बोलते सर यहाँ तो E चेंज हो जाएगा, तो फिर वहां बेटा दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, आपके E और dA वेरिएबल हो जाएंगे. सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग Gauss law, then in that is possible only for symmetric objects, only for symmetric or highly symmetric objects.
See, Gauss law is applicable everywhere. Gauss law is applicable everywhere, but if we are going to calculate electric field by using Gauss law, then our Gaussian surface should be highly symmetric. Or Gaussian surface should be highly symmetric. See, Gauss law is applicable everywhere, but if we are going to calculate electric field by using Gauss law, then the Gaussian surface should be highly symmetric. Okay. दूसरा जो एप्लीकेशन है, the next application calculation of electric field due to infinitely charged thin sheet. See, अगर आपका अब ये जो आपका था 1D ऑब्जेक्ट था बेटा, वायर था, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज sheet, infinitely sheet.